Okay, so in today's class, we are going to discuss statistics paper 5, paper 5 कहलाता है और probability and statistics 1 for 9709. Paper 5-2 we are going to discuss, variant is 2. It is May, June 2023 paper. The paper is of 1 hour 15 minutes. The total marks for this paper is 50 over here. So let's start with question number 1. In question number 1, it says the random variable x takes the value -2, 2, and 3. It is given that probability of x equals to small x equals to k times x square minus 1, where k is constant. Draw up the probability distribution table for x, giving the probabilities as a numerical fraction. So we need to make a probability distribution table here. So what we are going to do, we are going to select the values x equals to x over here, which can be -2, 2, and 3. And we have to write their probabilities. So these are the x values. You can say these are the x values over here. And this is going to be the probability of x equal to x. Now we are going to write down these probabilities over here. So how we are going to write down the probabilities? We are going to use this function a times x square minus 1. तो अगर मुझे x की वैल्यू यहां पर -2 रखूंगा, so I'm going to get the values -2 square, which is 4. 4 minus 1 is 3. So you're going to get 3k over here. X is equals to 2 over here. So I'm going to write 2 square. 4 minus 1 is 3. It is going to be 3k here. Next is x equal to 3 here. So I'm going to write x equal to 3 square minus 1. 3 square is 9. 9 minus 1 is 8. It is going to be 8k. And you know this कि यहाँ पर sum of probability बेटा हमारे पास बराबर होता है 3k plus 3k. These are the probabilities. Sum of probability is equals to 1. So from here you're going to get 8. 3 plus 3 is 6. 6 plus 8 is 14. So 14 right hand side पे जाएगा. So k value from here is going to be 1 by 14. तो अगर k की वैल्यू 1 by 14 है, so it is going to be 3 by 14. It is going to be 3 by 14. I'm going to put the k values here, and it is going to be 8 by 14. So my probability distribution table is going to be 3 by 14, 3 by 14, and 8 by 14 here. Now they are asking for find a value of expected value of x, variance of x. So first thing first, let me show you what is the formula for expected value of x. That is sum of x into px. What is the formula for variance of x? That is sum of x square into px minus mean square. And I hope you guys know this के expected value का मतलब mean ही होता है हमारे पास. ठीक है ना? अच्छा, इस काम को थोड़ा सा रैपिडली करने के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस टेबल, ताकि काम थोड़ा रैपिडली हो जाए मेरा, इसलिए मैं कॉपी कर रहा हूं. थोड़ा सा ऊपर भी कर लेते हैं इसको, so I can have a space here. देखो यहां पर लेट जस्ट मेक अ वन रो मोर कि यहां पर x इंटू पी एक्स में इधर निकाल लेता हूं. तो x इंटू पी एक्स क्या होगा? -2 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 14. -2 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 14, that is -3 by 7. 2 multiplied by 3 by 14, that is 3 by 7.
and 3 multiplied by 3 by 14, 8 by 14, that is going to be 12 by 7 here. So what is the mean over here? What is the expected value of x? You're going to add all these values. So minus 3 by 7 plus 3 7 is by 7 is going to be 0. 12 by 7 is going to be the answer for this. So you got the expected value of x. What about variance of x? So देखो variance of x में ना we need to find out इधर भी space थोड़ी बचाने के लिए let's just write 12 by 7 like this. For variance of x, we need to find out x square into px. फिर minus mean का square कर लेंगे. So what I'm doing here first, कि पहले मैं x square into px निकाल लूं. x square into px क्या होगा? This is minus 2 square. Minus 2 square is 4. 4 multiplied by 3 by 7. 3 by 14. It is going to be 6 by 7. 2 square is 4. 4 multiplied by 3 upon 14. Again, it is going to be 6 by 7. 3 square is 9. 9 square into 12 divided by 7. It is going to be 108 by 7. So sum of x square into px. What is sum? 6 upon 7 plus 6 upon 7 plus 108 upon 7 minus mean square. What is mean square? Mean is 12 by 7 whole square. You're going to put everything in the formula. यहाँ पर बस आप कैलकुलेटर में रखो values. The answer is 696 upon 49. This is going to be your variance over here. Achha, one of my value over here was now 3 square 9. 9 into 12, 9 into 8 divided by 14. It is going to be 36 by 7. So sum of x square into px is going to be 6 by 7 plus 6 by 7 plus 36 by 7 minus mean ka square 12 by 7 ka square. So I'm going to write everything in the calculator. It is going to be 192 upon 49. This is going to be our final answer here. Now, in question number 2, it says a sport event is taking place for 4 days, beginning on Sunday. The probability that it will rain on Sunday is 0.4. On any subsequent day, the probability that it will rain is 0.7. If it rained on the previous day, and 0.2 if it did not rain on the previous day. देखो आपके पास यहां पर इन्होंने पूरा डेटा दिया हुआ है कि संडे से आपका एक स्पोर्ट इवेंट स्टार्ट हो रहा है. संडे को रेन होने की प्रोबेबिलिटी है 0.4 और कह रहे हैं ऑन द सब्सिक्वेंट डे, यानी आगे के दिन की बात कर रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन इज 0.7 इफ इट रेन ऑन द प्रीवियस डे. यानी पिछले दिन अगर रेन हुई है तो बेटा अगले दिन रेन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.7. और पिछले दिन रेन नहीं हुई है, if it did not rain in the previous day, the probability is 0.2 over here. If it rained on the previous day, probability कितनी है? 0.7. If it does not rain on the previous day, probability कितनी है? 0.2.
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट डज नॉट रेन ऑन एनी ऑफ द 4 days ऑफ द इवेंट। कह रहे चारों दिन में कहीं भी कभी भी रेन नहीं हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेन। तो संडे को रेन नहीं हुई, संडे को रेन होने की प्रोबेबिलिटी 0.4, ना होने की 0.6। फिर अगर पहले रेन नहीं हुई है, संडे को रेन नहीं हुई है, इफ इट डज नॉट रेन ऑन द प्रीवियस डे, यानी अब मैं मंडे की बात कर रहा हूं, मंडे को देख रहा हूं कि मंडे को रेन हो रही है कि नहीं हो रही, मंडे की रेन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो संडे को रेन नहीं हुई है, तो मंडे को भी रेन ना होने की प्रोबेबिलिटी देखनी है मुझे, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट नो रेन प्रोबेबिलिटी। सो आई एम गोइंग टू राइट अगर यहां पर इफ इट डिड नॉट रेन ऑन द प्रीवियस डे, संडे को रेन नहीं हुई है, तो मंडे को रेन होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, और मंडे को ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.8 है। इसी तरह मंडे को रेन नहीं हुई है, तो ट्यूसडे को रेन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.2 है। तो ट्यूसडे को रेन ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.8। ट्यूसडे को रेन नहीं हुई है, तो बेटा वेनेसडे को रेन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.2, और ना होने की कितनी है, 0.8। तो बेटा इन सबको आप मल्टीप्लाई कराओगे, 0.6 इंटू 0.8, दैट इज 192/625। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। Okay, in question number 2, it says, part B, it says, find the probability that the first day on which it rains during the event is Tuesday. तो देखो बेटा, फर्स्ट डे आपके पास देखो 3 दिन नहीं 4 दिन है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ट्यूसडे वाले दिन रेन हुई है, संडे वाले दिन नॉट रेन, मंडे वाले दिन नॉट रेन। कह रहा है फर्स्ट टाइम जब रेन हुई है ना, वो ट्यूसडे वाले दिन हुई है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट डे ऑन व्हिच इट रेन ड्यूरिंग इवेंट इज ट्यूसडे। तो देखो बेटा, संडे को रेन ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यहां पर रेन होने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, इट विल रेन इज 0.4, इट विल नॉट रेन, इट इज 0.6। अगर मंडे की मैं बात कर रहा हूं, मंडे को नॉट रेन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे, तो मंडे की नॉट रेन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, देखो पिछले दिन रेन हुई है, इट डिड नॉट रेन ऑन द प्रीवियस डे, इट डिड नॉट रेन ऑन द प्रीवियस डे, संडे को रेन नहीं हुई है, तो मंडे को रेन होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, मंडे को रेन होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, मंडे को ना रेन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.8। मंडे को रेन नहीं हुई है, तो ट्यूसडे को रेन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखो मंडे को इफ इट डज नॉट रेन ऑन द प्रीवियस डे, तो करंट डे में प्रोबेबिलिटी रेन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.2। हम वेडनेसडे की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है ना, वी आर गोइंग टू राइट 0.6 इंटू 0.8 इंटू 0.2। उसको तो फर्स्ट डे बस इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि फर्स्ट डे ट्यूसडे को रेन हो गई आपकी, दैट इज 12/125, that is going to be 0.096। अच्छा, मैं यहां पर ये कंफ्यूजन भी क्लियर कर देता हूं, क्या आप यूं भी करते कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आप ये कहते कि सर क्या आप पूरा एक्सपेरिमेंट करें, संडे को रेन नहीं हुई, मंडे को रेन नहीं हुई, ट्यूसडे को रेन हो गई, वेडनेसडे के लिए 2 ऑप्शन है, रेन हो जाए या फिर रेन ना हो, अगर हम पूरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो या तो दिस कंडीशन और दिस कंडीशन, ये हो सकता है ना, अगर मैं पूरा एक्सपेरिमेंट करता हूं, वेडनेसडे को भी इंक्लूड करता हूं, तो ये हो जाएगा नॉट रेन 0.6 इंटू 0.8 इंटू 0.2। वेडनेसडे को पिछले दिन रेन हुई है, हाँ सर रेन हुई है, तो वेडनेसडे को रेन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है,
इफ इट रेन ऑन द प्रीवियस डे, तो करंट डे में रेन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.7। 0.6, 0.8, 0.2। प्रीवियस डे में रेन हुई है, यस। करंट डे रेन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3। अब इन दोनों के आंसर को आप निकालो और दोनों को ऐड कर लो। आप यूं कर लो, 0.6 इंटू 0.8 इंटू 0.2 इंटू 0.7 प्लस 0.6 इंटू 0.8 इंटू 0.2 इंटू 0.3। तो देखो इसका आंसर आ रहा है 0.12 over 125 which is 0.096। सेम आंसर आ रहा है। तो आप यूं करके आंसर निकालना चाहो या यूं करके आंसर निकालना चाहो, बोथ आर सेम थिंग। आप बोलो वैसे दोनों कंडीशन हो सकती है ना, वेनेसडे को वेनेसडे तक का पूरा एक्सपेरिमेंट करें आप। तो अगर किसी बच्चे ने ये बात सीखी हुई है कि हम पूरा एक्सपेरिमेंट करेंगे, दैट्स टोटली फाइन, कि आप इसका भी कर सकते हैं। नाउ फाइंड अ प्रोबेबिलिटी that it rains on exactly one of the 4 days of the event। अब देखो यहां पर कंडीशंस बनेंगी, इसलिए मैंने पिछले पार्ट के दोनों ऑप्शंस करवा दिया आपको। कि यहां पर देखो कह रहा है फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द 4 days ऑफ द इवेंट। यानी क्या पता पहले दिन रेन करे, बाकी दिन रेन ना करे, रेन ना करे, ड्राई रहे या रेन ना करे। We are going to have 4 options here. 4 options here that it will not rain. It will rain on exactly one of the days. तो देखो यहां पर we need to understand this। मैं यहां पर लिख देता हूं, अगर प्रीवियस डे रेन हुई है तो करंट डे में रेन होने की प्रोबेबिलिटी मैं यहां पर लिख देता हूं। इफ इट रेन ऑन अ प्रीवियस डे, करंट डेज में बेटा हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.7। अगर प्रीवियस डे में नॉट रेन है तो बेटा करंट डे में रेन होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है। ये डेटा मैंने पीछे से कॉपी कर लिया बस। तो देखो रेन होने की पहला दिन है, पहला दिन कौन सा है? जैसे संडे, मैं संडे का भी अलग से लिख लेता हूं कि संडे को रेन होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है? 0.4। तो पहला दिन तो है ही संडे ना, संडे, बल्कि एक ही दफा लिख लेता हूं मैं ये, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो संडे को तो रेन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.4। तो संडे को रेन हुई है पिछले, अगर प्रीवियस डे रेन हुई है तो बेटा अगले दिन नॉट रेन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3। दैट इज 0.3 ओवर हियर। प्रीवियस डे नॉट रेन, मंडे को रेन नहीं हुई है, तो करंट डे में प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? करंट डे में नॉट रेन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0.8। प्रीवियस डे में रेन नहीं हुई है, करंट डे में नॉट रेन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? रेन होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, नॉट रेन की बेटा 0.8 है। अब संडे को रेन ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.6। फिर अगर प्रीवियस डे में इट इज नॉट रेनिंग, करंट डे में रेन होने की प्रोबेबिलिटी 0.2। अगर प्रीवियस डे में रेन हुई है तो करंट डे में बेटा नॉट रेन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3।
अगर प्रीवियस डे में इट्स नॉट रेन, तो करंट डे में रेन होने की प्रोबेबिलिटी 0.2, नॉट रेन की 0.8। अगर प्रीवियस डे यानी ये संडे वाले दिन की बात करते हैं, अगेन नॉट रेनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.6। अगर प्रीवियस डे में इट इज नॉट रेनिंग, तो करंट डे में रेन होने की, नॉट रेन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, रेन की 0.2 है, नॉट रेन की 0.8 है। अगर प्रीवियस डे में इट इज नॉट रेनिंग, करंट डे में रेन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.2 है। प्रीवियस डे में इट इज नॉट रेनिंग, करंट डे में, प्रीवियस डे में इट इज रेनिंग, तो करंट डे में बेटा नॉट रेन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, होने की 0.6 है, ना होने की 0.3 है। संडे को नॉट रेन की प्रोबेबिलिटी 0.6, करंट डे में इट इज नॉट रेनिंग, तो प्रीवियस डे क्या हुआ था, प्रीवियस डे इट वाज नॉट रेनिंग, करंट डे इट इज नॉट रेनिंग, रेन होने की बेटा 0.2, नॉट की बेटा 0.8। प्रीवियस डे में इट इज नॉट रेनिंग, तो करंट डे में इट इज नॉट रेनिंग इज 0.8। प्रीवियस डे में इट इज नॉट रेनिंग, करंट डे में रेन होने की बेटी 0.2। इन सबके आंसर निकालेंगे, ऐड कर लेंगे। I'm just using calculator for this calculation. Zero point two double one two. This is going to be a final answer. ये ठीक है जी। Now in question number 3, this is back to back stem and leaf diagram of 27 employees, and they have also given us the key कि आपको बस ये की दी हुई है, देखो ये 27 बीच में लिखा हुआ है। It means they are focusing on this stem। 27 के बाद इस 6 का मतलब है $2760, $20,760। और 27 के बीच लेफ्ट साइड पे जो 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है $27,010, $22,710। इन्होंने इसका मतलब बताया हुआ है। मैं कह रहा है फाइंड द मीन मीडियन एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज ऑफ द मंथली सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज इन कंपनी ए। कंपनी ए की पहले बात कर रहे हैं। कह रहा व्हाट इज द मीडियन ओवर हियर। तो सिंस उसने आपको बताया हुआ है कि भाई दिस इज योर देयर आर 27 एम्प्लॉइज, तो अगर आप चाहो तो उसे काउंट भी कर सकते हो। दिस दिस इज 5 ओवर हियर, मैं इधर, दिस इज 5, दिस इज 7, 7 वैल्यूज हियर, दिस इज 3, दिस इज 5, दिस इज 3 एंड दिस इज 1। सम ऑफ इनका सम करते हैं ना, 5 7 3 5 3 1। तो 5 + 7 + 6 + 5 + 3 + 1, it is 27 here।
ठीक है, तो देखो यहां पर 27 एम्प्लॉइज हैं, मीडियन की पोजीशन क्या होती है? इट इज n+1/2, 27 + 1/2, दैट इज 28 डिवाइड बाय 2, दैट इज 14 पोजीशन। तो शुरू की 5 पोजीशन तो इधर आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यूं नहीं चलेंगे बेटा, इस डायरेक्शन में जाएंगे, राइट? तो 5 यहां पर हो गई, 12 यहां तक हो गई, 13 14, तो 2710 इज योर मीडियन। 27 और 1 के बाद क्या लिखा हुआ है? 27 के बाद 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2710 मीडियन। ये आपके पास डॉलर्स मीडियन में आ जाएगा। इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालना है, यानी Q1 निकालना है और Q2 निकालना, Q3 निकालना है। मीडियन तो होता ही Q2 है। तो देखो बेटा, आपके पास क्योंकि ये ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, दिस इज योर मीडियन ओवर हियर, यू हैव ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज। इससे पहले कितना डेटा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इन 13 वैल्यूज का जो मिड होगा, दैट इज गोइंग टू बी योर Q1। तो 1/4 ऑफ n+1, यहां पर बेटा 1/4 n+1 में मैं 13 लिखूंगा और यहां पर लिखूंगा 7th पोजीशन। तो 7th पोजीशन पे हमारे पास कौन सी वैल्यू है? इन 7th पोजीशन वी हैव द वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, वी हैव 2610। और Q3 भी इस तरह निकाला जाएगा, दैट इज 1/4 ऑफ n+1। लेकिन बेटा 1/4 ऑफ 13+1, 7 पोजीशन। तो यहां से अब देखो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7, तो यहां पर बेटा दिस इज योर 7th पोजीशन। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा हमारे पास? दिस वैल्यू इज 2840 डॉलर्स। एंड व्हाट इज IQR, इंटरक्वार्टाइल रेंज? The difference of these values, 2840 minus 2610. That is going to be 230 here. So this is going to be your interquartile range of this data. Now, in part B, they are saying that lower quartile, median and upper quartile for the company B is, इन्होंने बेटा ये Q1 दे दिया, this is Q2 and this is Q3. Q1 median को Q2 कहते हैं, Q3 upper quartile होता है। Draw two box and whisker plot in single diagram to represent this information of the salaries of employees at company A and company B. अब कंपनी A और कंपनी B के लिए बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो हम एक नंबर लाइन क्रिएट करते हैं, पहले एक नंबर लाइन क्रिएट करते हैं जिससे हम सारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकें। देखो बेटा, लोएस्ट वैल्यू ऊपर क्या है? वी नीड टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू एज वेल और मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो, कंपनी ए की मैं लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूं, कंपनी ए की व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? $2500 and the maximum value is 30,010 dollars। कंपनी ए बी की मिनिमम वैल्यू 25,040 $2540, maximum value is 3,090 ये इनकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज आ गई, ताकि मैं ग्राफ को प्लॉटिंग कर सकूं। तो मिनिमम वैल्यू में देख रहा हूं 25 और मैक्सिमम 31 तक कहानी चले जाएगी।
तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट लाइक यहां पर अगर मैं इसकी प्लॉटिंग करता हूं, मुझे डिसाइड करना पड़ेगा देर आर 1 2 3 4 5 6 7 ओवर हियर. So if I just join it like this, 21, 24,000, 25,000 कह रहा हूं, 100, 2600, 27, 28, 29, 30 and 31. हम ये स्टार्ट कर लेते हैं. एंड दीज आर इन डॉलर्स, और यहां पर मैं लिख रहा हूं 100. सही ना? इसका मतलब है $2,400, $2,500, $2,600. ये वैल्यूज इस तरह लेबल करनी है मुझे. अब देखो, कंपनी ए कंपनी बी के लिए बॉक्स इन्वेस्टर डायग्राम बनानी है, तो कंपनी ए की बात कर लेता हूं मैं. कंपनी ए की मिनिमम वैल्यू 2,500 है, मैक्सिमम वैल्यू 30,000, 3,010 है. सो 2,500 के लिए बेटा आई एम गोइंग टू प्लॉट दिस. This line, the minimum value, and 3,010 maximum value. So 3,010 is going to be over here. Then what is the Q1? Q1 is 2610, 2610. तो 26 के बाद बेटा ये एक बॉक्स, वन बॉक्स रिप्रेजेंट $10. What is median? Median is 2710, company A. So after 27, one box. Then what is Q3? Q3 2840. So after I'm going to make this box over here, and I'm going to make a Vixer over here. This is company A. This is company A. What about company B? कंपनी बी का डेटा मैं जरा से ये यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ. इसका सारा डेटा सेकंड उस पे है. तो कंपनी बी की मिनिमम वैल्यू, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ कंपनी बी? 2540. 25 के बाद 4 boxes is going to be a minimum value. Maximum value is 30,009. So that is Q1 is 2,600, 2690, 2780, box over here and Whisker over here. Say na, this is company B and company A. Comment on whether the mean would be more appropriate measure than the median for comparing the given information for the two companies. तो देखो बेटा, मीन वैल्यू कैलकुलेशन की बेसिस पर निकलता है. सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज. तो देखो, आपके पास मीन इज लेस एप्रोप्रिएट. Why? What is the reason? If we compare it with the median, reason क्या है? Because of extreme value for कंपनी बी. देखो कंपनी बी की ये बहुत बड़ी वैल्यू है. देखो बहुत दूर लेकर चले गया हमारे पास बॉक्स, विस्कर को बहुत दूर लेकर चले गया. अब ये वैल्यू जो 3090 है,
इसकी वजह से मीन वैल्यू कैलकुलेशन में बढ़ जाएगी। इस वजह से बेटा हम लोग कहेंगे कि मीडियन इज गोइंग टू बी अप्रोप्रिएट वैल्यू, क्योंकि मीडियन हमें मिड वैल्यू वैसी बता रहा है। तो सिर्फ एक वैल्यू की वजह से बेटा हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू की वजह से हमारा पूरा मीन पूरा बढ़ जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन में आ जाता है वो, उसकी वजह से वो मीन बहुत बढ़ा देगा, जबकि एक्चुअल में मिड वैल्यू यहां पर कहीं एग्जिस्ट कर रही है। तो मीन कहीं आ रहा होगा 2790 के करीब, 27 के करीब, 2700 के करीब, और मीन आना चाहिए 2700 के करीब, लेकिन इस वैल्यू की वजह से बढ़ जाएगा। इस वजह से मीन को हम लोग अप्रोप्रिएट नहीं मानेंगे, हम मीडियन को अप्रोप्रिएट मानेंगे, जिससे हमारे पास मिड वैल्यू निकल कर आ रही है। 9 क्वेश्चन नंबर 4, it says a five-sided spinner has sides labeled 1, 2, 3, 4, 5. The spinner is spun repeatedly until a 2 is obtained on the side on which spinner land. The random variable x denote the number of spin required. देखो यहां पर p x equal to 4 का मतलब क्या है कि 4 टाइम स्पिन कर रहे हैं। ठीक है ना, 4 टाइम हम स्पिन कर रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मांग रहे हैं कि आप जब आप 4 टाइम स्पिन करें तो आपका स्पिन करना रुक जाए, यानी आप तब तक स्पिन करते रहेंगे जब तक कि 2 नहीं आ जाएगा। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 2 इज 4/5। तो फर्स्ट टाइम 2 नहीं आया, not having 2, second time में भी you don't have 2 over here in the spin, थर्ड टाइम में भी 2 नहीं आया, फोर्थ टाइम में, फोर्थ टाइम जब स्पिन करा 2 आ गया, तो not having 2 is 4/5, not having 2 is 4/5, not having 2 in the 4/5 थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म में बेटा 2 आ जाएगा, तब जाकर आप स्पिनिंग रोक देंगे, और 4 टाइम 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5, यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दीस वैल्यूज, तो 4/5 it is 64/625, और डेसिमल में कोई ऐसी वैल्यू नहीं आ रही जो कि चलती जाए, इसलिए डेसिमल का आंसर भी मैं लिख रहा हूं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 6, यानी लेस देन 6 में ही रुक जाए काम। तो देखो दिस इज बेसिकली अ क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको तो मैं, कि आपका एक्सपेरिमेंट तब तक चलते रहता है जब तक आपकी डिजायर्ड कंडीशन फुलफिल ना हो जाए। तो लेस देन 6 में तो बहुत, अगर आप इसका ऑल्टरनेट निकालना चाहेंगे ना लेस देन 6 में, तो लेस देन 6 में बेटा अगर आप एक्सप्लेनेशन में जाना चाहते हैं तो आप x इज इक्वल टू 1 का आंसर निकालेंगे, x इज इक्वल टू 2 का आंसर निकालेंगे, t का आंसर निकालेंगे, 4 का, 5 का, इन सब के आंसर निकालेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जैसे यहां पर भी अगर आपको x टू 4 का आंसर निकालना है ना, तो आप यूं कर सकते हैं कि p इंटू 1 - p की पावर, अगर आपने यहां पर फोर्थ अटेम्प्ट में यहां पर देखना है कि आपके पास 2 आ रहा है, तो बेटा आप यहां पर पावर में 3 लिखेंगे, आप यूं भी आंसर निकाल सकते हैं इसका। तो अब आप यहां पर इन सबसे आंसर निकालें ये फॉर्मूला यूज करते वक्त, यहां पर आप कह सकते हैं कि यहां पर पावर r-1 कर लें, जनरलाइज फॉर्म में, यही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है। और यू कैन यूज इसका रिवर्स काम कर लें, और रिवर्स काम क्या है कि अगर आपको x लेस देन 6 का आंसर निकालना है ना, या तो आप इन सबका आंसर निकालें, सबको ऐड करें, दूसरा है 1 - q की पावर,
यहां पर 5 कहां से निकालना है? व्हाट डज इट मीन? देखो x इज लेस देन 6 का आंसर निकालना है, यानी x इज लेस देन इक्वल टू 5 का आंसर निकालना है, तो उसका आंसर 1 माइनस क्यू की पावर 5 से निकालना है। क्यू का मतलब क्या होता है? क्यू मीन्स दिस वैल्यू मीन्स क्यू, तो क्यू की वैल्यू क्या है? 4/5, तो 1 माइनस 4/5 की पावर 5 का आंसर निकाल लें, यू विल गेट दी आंसर। और मैं इसका कैलकुलेटर में अगर आंसर निकालता हूं 1 माइनस 4/5 की पावर 5, इट इज गोइंग टू बी 2101 अपॉन 3125, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब कहां ये सारे स्टेप्स फॉलो करो, सबको ऐड करो, फिर निकालो 2 मार्क के लिए, या एक झटके में देखो ये आंसर आ गया। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर वो चाहता है कि भाई x इज लेस देन इक्वल टू 6 का आंसर निकालना है, तो आप 1 माइनस क्यू की पावर 5 का आंसर निकालना है। लेस देन इक्वल टू 7 का आंसर निकालना है, 1 माइनस क्यू की पावर 6 का आंसर निकालना है, आपको डायरेक्ट आंसर दिस इज इक्वल टू दिस, एंड दिस वैल्यू, दिस होल वैल्यू इज इक्वल टू दिस वन। अगर आप इससे भी आंसर निकालते हो सेम आंसर आता। अब यहां पर कह रहा है टू फेस 5 साइड स्पिनर, ईच विच साइड लेबल्ड 1 2 3 4 5 आर स्पन at the same time. If the number of obtains are equal, the score is 0. Otherwise, the score is higher number minus the lower number. अब देखो यहां पर आपके पास 2 फेस साइड डाइस को रोल किया जा रहा है, 2 फेस 5 साइड स्पिनर को रोल किया जा रहा है, स्पिन किया जा रहा है। अगर सेम नंबर आया तो 0 स्कोर बनेगा आपका, अदरवाइज आपका जो स्कोर होगा उनका जो डिफरेंस होगा वो आपका स्कोर होगा। तो मैंने एक काम करता है, मैं इसलिए पॉसिबिलिटी डायग्राम बना लेता हूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब मेरा स्कोर क्या हो सकता है? जब दोनों दफा 1 1 आया तो मेरा स्कोर 0 होगा। सो माई स्कोर ओवर हियर इज गोइंग टू बी 0 0 0 0 0, जहां पर दोनों सेम आ रहे हैं। जहां दोनों सेम नहीं है, इनका डिफरेंस हमारे पास स्कोर होगा। इधर मेरा स्कोर 2 बन गया, इधर मेरा स्कोर 3 बन गया, इधर मेरा स्कोर 4 बन गया, इधर मेरा स्कोर 1 बन गया, इधर मेरा स्कोर 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया, इधर 2 1 1 2। यहां पर 4 माइनस 1 3 बन गया, 2 1 1। यहां पर बेटा हमारे पास स्कोर बन गया 4 3 2 1 सो ऑन। अब वो आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्कोर इज हायर देन 0 गिवन दैट द स्कोर इज नॉट इक्वल टू 2। सो फ्रॉम द स्कोर यानी वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोर ग्रेटर देन 0 गिवन दैट द स्कोर इज नॉट इक्वल टू 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकलती है इन दोनों का कॉमन इवेंट, इसको ए कह दो, इसको बी इवेंट कह दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दिस इज गोइंग टू बी ऑफ कंडीशन प्रोबेबिलिटी। यानी x इज नॉट इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? x इज नॉट इक्वल टू 2 में हमारे पास कौन कौन से इवेंट आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। there are 19 events जो नॉट इक्वल टू 2 हैं, तो 19 डिवाइड बाय 25 इनकी प्रोबेबिलिटी। इनमें से देखो अब कौन से ऐसे इवेंट हैं जो ग्रेटर देन 0 हैं? दिस इज ग्रेटर देन 0, this is greater than 0, greater than 0, greater than 0, greater than 0, greater than 0. How many events are these which are greater than 0? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो इनकी ऑलरेडी 14 by 25, 25 to 25 cancel, 14 upon 19 is going to be your answer. The two spinners are spun at the same time repeatedly. For 9 randomly chosen spin of the two
spinner. Find the probability that the score is greater than 2 on at least 3 equation. अब देखो यहां पर जो है ना, इन्होंने सवाल करा है कि आपके पास 9 दफा आपने स्पिन करा है, यहां पर फिक्स है कि आपने 9 दफा स्पिन करा है, तो एक्सपेरिमेंट इज डन 9 टाइम्स। और ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये 2 स्पिनर जो स्पिन कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इनकी प्रोबेबिलिटी किसी और की प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड नहीं करती, किसी और इवेंट पर। प्रोबेबिलिटी इज कांस्टेंट ओवर हियर। तो बेटा ये हमारे पास बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है। किसका सवाल है? बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है। हम 2 स्पिनर को स्पिन कर रहे हैं, कह रहे स्कोर आपके पास ग्रेटर देन 2 हो ऑन एटलीस्ट 3 इक्वेशन, ऑन एटलीस्ट 3 इक्वेशन। तो देखो बेटा, आपके पास यहां पर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? एनसी एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स पी की पावर एक्स। एटलीस्ट 3 इक्वेशन का मतलब क्या है? कि वो आपसे 3 या 3 से ज्यादा इक्वेशन पर चाहता है स्कोर ग्रेटर देन 2 हो। ये ओकेजन्स की बात कर रहा हूं। देयर शुड बी एटलीस्ट 3 इक्वेशन, यानी नॉन रैंडमली आप चूजन रैंडमली चूज कर रहे हो ना स्पिनिंग, तो 2 या 2 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा ओकेजन्स में आपका स्कोर ग्रेटर देन 2 हो, यानी आपने तीसरी दफा स्पिन करा तो आपका स्कोर ग्रेटर देन 2 आना चाहिए, चौथी दफा में ग्रेटर देन 2 आना चाहिए, पांचवी दफा में ये इस तरह आना चाहिए आपके पास। तो हमने क्या करा, हमने बोला यार ग्रेटर देन 2 पर अब मैं एक्स टू 3 पर निकालूं, 4 के पर निकालूं, 5 पर निकालूं, ये बहुत लंबा काम हो जाएगा। मैंने बोला एक काम करते हैं, 1 माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू पे आंसर निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, 1 एंड 2 का आंसर निकाल लेते हैं। तो n की वैल्यू इज 9, सी x वैल्यू इज 1। मैं यहां पर बल्कि डिटेल में लिख देता हूं एक बात, मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 पे निकालूंगा, 0 पे निकालूंगा, x इक्वल टू 1 पे निकालूंगा, और x इज इक्वल टू 2 पे निकालूंगा। 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी, तो 0 पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 9c0। q की वैल्यू, अब देखो ऊपर आपने काम करा हुआ होगा, या आप ये काम खुद से निकाल सकते हैं कि ग्रेटर देन 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है। यहां पर ग्रेटर देन 2 वाले इवेंट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहां से बेटा मैंने निकाल लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोर ग्रेटर देन 2 इज 6/25। तो यहां पर बेटा p की वैल्यू 6/25 है और q की वैल्यू 19/25 है। तो यहां पर देखो बेटा, मैं लिख रहा हूं q हो गया 19/25, 9 माइनस 0, और p के लिए 6/25, 9 हो गया। सेम यहां पर 9c1 और यहां पर 9c2, 19/25, ये 9 माइनस 1, 6/25, ये 1 हो गया, सॉरी ये 8 हो जाएगा। ये 0 और ये 1 हो गया। 19/25, 9 माइनस 2, 6/25, दिस इज 2 ओवर हियर। इस पूरे का आंसर निकालेंगे, यार है 0.0845
59. This is 0.2404. This is 0.3037. After simplification, you'll get the answer 0.371. ये आपके आंसर निकल कर आ जाएगा. Now in 5 part A, it says the length of a western bluebird are normally distributed with mean 16.5 and standard deviation 0.6. A random sample of 150 of these birds is selected. How many of these 150 birds would you expect to have the length between 15.4 and 16.8? यानी आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है between 15.4 and 16.8. Now convert this value in Z form. Normal distribution है. So value minus mean, 15.4 minus mean divided by standard deviation, that is 0.6. It becomes Z. 16.8 minus mean divided by standard deviation, that is 0.6. तो बेटा यहां पर आपके पास Z की वैल्यूज क्या आ रही हैं? 15.4 minus 16.5 divided by 0.6 minus 1.8333 लिख रहा हूं मैं पहले. Then 16.8 minus 16.5 divided by 0.6, 0.5 लिख रहा हूं. देखो आपके पास जो Z की वैल्यू होती है ना, वो 3 डेसिमल प्लेस तक होती है. तो यहां पर पहले मैंने 4 डेसिमल प्लेस लिखा और फिर राउंड ऑफ करके 3 डेसिमल प्लेस पे लिख रहा हूं. ये मैंने करने के बाद वी आर गोइंग टू check the Z table here. All right, so this is the case that we are following. देखो हमें चाहिए 0.5. We need the value from 0.5 till minus 1.833. तो पहले less than 0.5 का आंसर निकालूंगा, the probability of this from the table. So 0.5 से less than की probability from the table is 0.6915 over here. 0.50 over here, 0.6915. So this is the probability of 0.6915. Now the reverse case of this, अगर मुझे यहां तक चाहिए प्रोबेबिलिटी, दिस इज द होल प्रोबेबिलिटी ओवर हियर, मुझे तो सिर्फ यहां तक चाहिए, तो मैं -1.83 से लेस देन की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा. और वो कैसे निकालूंगा? अब देखो, we need the probability between these two values. तो हम लेस देन 0.5 की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है 0.6915. अब ये इस पूरी की प्रोबेबिलिटी है. We need to minus this portion over here. We need to minus this portion. So what is the probability of less than -1.833? What is the probability over here? मैं ये probability नहीं निकाल सकता क्योंकि यहां पर Z नेगेटिव है. तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका रेसिप्रोकल केस बनाऊंगा. मुझे ये probability चाहिए और मुझे ये probability चाहिए अभी. तो मैं इसका रेसिप्रोकल केस बनाऊंगा, सिमेट्रिकल केस बनाऊंगा कि मैं ये probability निकालूंगा. I'm going to find out this probability over here. अब ये probability कितनी है? मसला कुछ ये है कि Z टेबल ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी निकाल के नहीं देता, ग्रेटर देन 1.833 की प्रोबेबिलिटी निकाल के नहीं देगा. तो मैं 1.833 के लेस देन की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा. मैं जाऊंगा अपने टेबल पर, 1.8 ये रहा, दिस इज 1.8, 3 ये रहा, उसके बाद 3 ये रहा. ये देखिए 0.9664, 0.9664 और इसमें 0.0002 ऐड कर लूंगा. सो माय आंसर इज गोइंग टू बी 0.9666.
So this probability is going to be 0.9666. And this one is going to be 1 minus 0.966. 0.0334. तो ये वाली प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास? ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ रही है 0.3334. अब होगा क्या कि देखो बेटा, आई नीड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन. ये मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए. तो देखो मैं यहां पर आई एम गोना सबट्रैक्ट दिस probability of z is less than 0.5 minus probability of z is less than 1 minus 1.833. तो z is less than 0.5 कितनी है? 0.6915 minus 0.0334. You'll finally get the answer 0.0915 minus 0.0334. (0.06915) और ये आ रही है 0.6581. अब देखो ये प्रोबेबिलिटी है, उसने बोला हुआ है आउट ऑफ 150 बर्ड्स हाउ मेनी वुड यू एक्सपेक्ट बिटवीन दिस. तो बिटवीन दीज वैल्यूज the probability of the birds is 0.6581. So if you multiply these values with the total number of values, तो आपको एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बर्ड्स पता चल जाएंगी जो कि इन वैल्यूज के दरमियान है, यानी जिनकी लेंथ इनके दरमियान है. दैट इज 98.715. अब आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हो, और यू कैन राइट लाइक 98 इज गोइंग टू बी योर आंसर, और यू कैन राइट 99 गोइंग टू बी योर आंसर. ये आपके दो आंसर हो सकते हैं कि आप 98 से लेकर 99 बर्ड्स एक्सपेक्ट कर सकते हो जो कि इस लेंथ के दरमियान होगी. Next, they are asking the length of the eastern bird. Bluebirds are normally distributed with mean 18.4 centimeter and standard deviation sigma. It is known that 72% of the eastern birds, bluebirds, have length greater than 17.1. Find the value of sigma. अब देखो यहां पर इसने प्रोबेबिलिटी दी हुई आपको, अब आपने बैकवर्ड रीडिंग करनी है. उसने क्या बोला हुआ है कि लेंथ ग्रेटर देन 17.1 की प्रोबेबिलिटी 72% यानी 0.72 है. तो मैं लगा इसको z में कन्वर्ट करो. z इज ग्रेटर देन 17.1 माइनस मीन. मीन इज 18.4 ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, वो तो हमें पता ही नहीं है. So it is z is greater than minus 1.3 upon sigma. इसकी प्रोबेबिलिटी 0.72 है. तो अगर मैं यहां पर इसका जरा सा चार्ट बनाकर आपको बताऊं कि इसने क्या एक्सप्रेस करा हुआ है, तो देखो यहां पर मीन है 18.4. तो मीन हमेशा मिड में प्लॉट किया जाता है. ग्रेटर देन 17.1 का मतलब क्या है कि मीन से वैल्यू पीछे है. यहां पर दिस इज गोइंग टू बी 17.1. तो ग्रेटर देन 17.1 की प्रोबेबिलिटी, यानी वो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी दे रहा है, दैट इज 0.72. तो अब आप देखो अगर z की फॉर्म में आप कन्वर्ट करते हो तो आपकी z की वैल्यू, ये मीन, जहां मीन होता है वहां पर z की वैल्यू 0 होती है, और ये लेफ्ट साइड पे 17.1 लिखा हुआ है, यानी आपकी z की वैल्यू नेगेटिव होगी. अब आप ये z की वैल्यू निकालोगे कैसे? हाउ विल यू फाइंड आउट दिस z वैल्यू? आई एम क्रिएटिंग अ सिमेट्रिक केस. 18.4 यहां पर मीडियन है, तो यहां पर z जो होगा ना वो नेगेटिव होगा. यहां पर z नेगेटिव है, मैं इसी का यहां पर पॉजिटिव बना रहा हूं केस. तो ये जो बेटा वैल्यू होगी, दिस इज लेस देन दिस वैल्यू ओवर हियर इज गोइंग टू बी 0.72. मैं यहां पर लेबल कर देता हूं, z ओवर हियर इज गोइंग टू बी नेगेटिव, और यहां पर z पॉजिटिव होगा. मुझे वो z की वैल्यू चाहिए. तो इधर z की वैल्यू लेस देन
Z की वैल्यू ऐसी क्या है जिसके लेस देन पे 0.72 प्रोबेबिलिटी है? वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स अ टेबल हियर. 0.72 प्रोबेबिलिटी पर Z की वैल्यू क्या है? तो 0.72 प्रोबेबिलिटी बन का रही है. देखो दिस इज 0.7190, इसमें 10 ऐड कर दूंगा 0.72 प्रोबेबिलिटी बन जाएगी. यानी अगर मैं इसमें ऐड कर दूं ना 0.7190 में 0.0010 ऐड कर दूं, 0.72 प्रोबेबिलिटी बन जाएगी. तो ये वैल्यू क्या बनी? 0.583 बनी. जेड वैल्यू क्या है? 0.583. तो मैं यहां पर गया, दिस इज पॉजिटिव में 0.583, दिस इज नेगेटिव में 0.583. तो मेरी तो एक्चुअल नेगेटिव में वैल्यू थी ना, तो मैं z की वैल्यू -0.583 है और यहां पर z की वैल्यू -1.3/सिग्मा है. तो बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, सिग्मा की वैल्यू 1.3 डिवाइड बाय 0.538 और ये जगह 0.6994. ये आपके पास सिग्मा की वैल्यू निकलकर आ जाएगी. मैंने 583 लिखना था, 583 2.29. तो 3 सेम फिगर में 2.23 आ रही है. A random sample of 120 eastern bird is chosen. Use an approximation to find a probability that fewer than 80 of these 120 bluebirds have length greater than 17.1. तो यहां पर बेटा अब हमें अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल करनी है. 120 रैंडम सैंपल लिया हुआ है, तो बेटा अगर n की वैल्यू 120 है यहां पर, मैं np निकालता हूं, मैं nq निकालता हूं. n is 120 ग्रेटर देन 17.1 की प्रोबेबिलिटी 0.72 है, ऊपर दिया हुआ है. तो मैं इसको p से मल्टीप्लाई कराता हूं 0.72 और इसको 0.28 से मल्टीप्लाई कराता हूं, q की वैल्यू 0.28. क्या दोनों का आंसर ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 5 आ रहा है? अगर दोनों का आंसर ग्रेटर देन 5 आ रहा है ना, तो बेटा आप अप्रोक्सीमेशन करते हैं. उसने बोला हुआ है, इसके वजह से लाजमी तौर पर आ रहा होगा. तो चेक करने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ चेक करवा रहा हूं. दोनों का आंसर ग्रेटर देन 5 आ रहा है. इसमें जो एनपी की वैल्यू ना 86.4, ये मीन भी कहलाता है. और एनपी क्यू की वैल्यू, ये वेरिएंस भी कहलाता है. तो मतलब बताओ 120 इंटू 0.72 मल्टीप्लाई बाय 0.28, ये आ रहा है 24.192. दैट इज द वेरिएंस. अब मैंने क्यों निकाला? क्योंकि अप्रोक्सीमेशन जब हम कर रहे हैं तो फेयर देन 80 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू. एक्स लेस देन 80 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो लेस देन 80 का मतलब क्या है कि वैल्यू माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 24.192 का स्क्वायर रूट. क्योंकि ये हमारे पास वेरिएंस है ना, तो ये हमारे पास क्या बन रही है एक्स की वैल्यू. मैं अब यहां पर एक्स की निकालता हूं 80 माइनस 86.4
डिवाइड बाय रूट 24.192। यार ये -1 अच्छा, यहां पर एक चीज रह गई थी, वो क्या है हमारे पास? वो है कंटिन्यूटी करेक्शन, वो मैं भूल गया था। तो एक्स इज लेस देन है, ये लेस देन का मतलब है 0.5 माइनस कर देंगे, इट बिकम 79.4। यहां पर बेटा आप 79.4 लिखेंगे। तो 79.4 माइनस 86.4 डिवाइड बाय रूट 24.192, यह आएगा बेटा -1.4। जेड में कन्वर्ट हो गया, -1.423। या आपके पास 3 डेसिमल प्लेस पे मैंने वैल्यू निकाल ली है जेड की। अब लेस देन पे तो आंसर निकाल नहीं सकते हम लोग। बेसिकली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें किसका आंसर चाहिए? -1.423 के लेस देन का आंसर चाहिए, लेस देन ये प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें। बट वी कैन नॉट फाइंड आउट दिस आंसर। तो मैं इसका सिमेट्रिकल केस बनाया, मैं बोलूंगा ग्रेटर देन 1.423 का आंसर निकाल लें आप। हमें ये चाहिए आंसर, इसका आंसर निकाल लें। तो जवाब है आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते, ग्रेटर देन का आंसर आता ही नहीं है कैलकुलेटर में, उसमें टेबल में। तो आप इसका आंसर निकालेंगे लेस देन 1.423 का। 1.423 का आंसर क्या आएगा? देखो लेस देन में 1.42 और ये हो गई 3 वैल्यू, इट इज गोइंग टू बिकम 0.9, 0.9222 और इसमें 0.004 ऐड कर लें, 0.9226 हो जाएगा। 0.92 402 पे वैल्यू चेक करें। 1.402, the value at 1.402 is 1.40 and then 2, 0.19192, 919। फाइव आ रही है। 1.4028 के बाद ये ए है, तो इसको आप z इज लेस देन -1.403 कर लें, इसको भी 403 कर लें, थोड़ा और एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। 403 पर हमारे पास है 4 यहाँ पर, टू ऐड 4 ओवर है 0.9196 आ रहा है। तो 1 माइनस 0.9196, इट इज गोइंग टू बी 0.084। तो आपके पास यहाँ पर जो इसकी वैल्यूटी निकल कर आ रही है, z इज लेस देन -1.04, 403 इज 0.0804 आंसर निकल कर आ रहा है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
In a group of 25 people, there are 6 swimmers, 8 cyclists, 11 runners. Each person competes in only one of these sports. A team of 7 players is selected from these 25 people to take part in the competition. Find a number of different ways in which a team can be selected. It is a combination question. Team select कर रहे हैं आप. Team of 7 can be selected if it consists of exactly 1 swimmer, at least 4 cyclists, and at most 2 runners. अब देखो 7 टोटल चाहिए हमें. स्विमर हैं, साइक्लिस्ट हैं और रनर्स हैं. टोटल 7 होने चाहिए. तो एग्जैक्टली एक स्विमर तो हो, यानी आप जितनी भी कंडीशन बनाएंगे उसमें एक स्विमर तो लाजमी है. थोड़ा करीब करके लिख लेता. टी का मतलब है टोटल. और एटलीस्ट 4 साइक्लिस्ट. तो साइक्लिस्ट वैसे भी 4 हैं, रनर्स 11 हैं, स्विमर 6 हैं. तो स्विमर तो एक ही लेंगे हम लोग. साइक्लिस्ट एटलीस्ट 4 कह रहे हैं तो मैं 4 ले लिया यहां पर. एटमोस्ट 2 रनर्स का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 2 रनर्स हो सकते हैं, तो मैंने 2 रनर लिख दिए. अब देखो क्या ये टोटल 7 बन रहा है? हाँ सर, टोटल 7 बन रहा है. अगर मैं एक स्विमर लूं, 4 साइक्लिस्ट लूं और एक रनर लूं तो ये टोटल 7 नहीं बन रहा, ये तो 6 बन रहा है. तो मैंने बोला एक काम करते हैं, साइक्लिस्ट के पास गुंजाइश है कि वो एक बढ़ सकता है, इधर मैंने 5 कर दिया, टोटल 7 बन गया ये. अच्छा, अगर मैं यहां पर 1 स्विमर लूं और रनर 0 ले लूं तो यहां पर मुझे साइक्लिस्ट एक और बढ़ाना पड़ेगा ताकि टोटल 7 रहे. एटमोस्ट 2 रनर का मतलब है कि 2 रनर भी हो सकता है, एक भी हो सकता है और 0 रनर भी हो सकता है. मैं किसी एक पे फोकस कर लेता हूं. एक पे फोकस करूंगा ना, दूसरा वो खुद ब खुद में बढ़ा सकता हूँ. अब सबकी वैरायटीज निकालूंगा मैं यहां पर, सॉरी कॉम्बिनेशन निकालूंगा. ये 6C1 है, ये 4C4 है और ये 11C2. दिस इज गोइंग टू बी 6C1 4C4 4C5. अब सर ये 4C5 तो हो नहीं सकता यहां पर, ये तो 8 साइक्लिस्ट है हमारे पास. तो मैंने यहां पर गलत लिखा हुआ है, दैट इज 8 साइक्लिस्ट यहां पर है, यहां पर ये 8 हो गया. और ये जगह बेटा 11C1, जगह 6C1, 8C6, 11C0. इन सब के आंसर निकालें. पहले वाले का आंसर आ रहा है 23 100. दूसरे का आ रहा है 3696 और इसका आ रहा है बेटा 168. इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन 26964 हो गया. फॉर अनदर कॉम्बिनेशन, अ टीम ऑफ 9 players consists of 2 swimmers, 3 cyclists, 4 runners. The team members stand in a line for a photograph. How many different? अच्छा देखो, अब ये 2 स्विमर सेलेक्ट हो चुके हैं. 9 में से 9 लोग सेलेक्ट किए गए, जिनमें 2 स्विमर हैं, 2 साइक्लिस्ट हैं, 3 साइक्लिस्ट हैं और 4 रनर्स हैं. हाउ मेनी डिफरेंट एनिमल आर देयर फॉर 9 पीपल इफ द स्विमर्स आर स्टैंड टुगेदर? स्विमर्स दोनों साथ में हो और ये साइक्लिस्ट है हमारे पास 3 और ये 4 रनर्स हैं. तो कह रहा है भाई स्विमर साथ में हो, साइक्लिस्ट स्टैंड टुगेदर, साइक्लिस्ट भी साथ हो और रनर भी साथ में हो. तो इन सबको मैंने एक बॉक्स में क्रिएट कर लिया. इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2 फैक्टोरियल, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3 फैक्टोरियल, इसकी परमुटेशन हो जाएगी 2 फैक्टोरियल, इसकी परमुटेशन हो जाएगी 3 फैक्टोरियल, इसकी परमुटेशन हो जाएगी 4 फैक्टोरियल और फिर तीनों बॉक्स की परमुटेशन दैट इज 3 फैक्टोरियल. इसका आंसर निकालेंगे 1728 आ जाएगा. और फिर यहां पर लिखा है फॉर अनदर कॉम्पिटिशन अ टीम ऑफ 9 प्लेयर कंसिस्ट ऑफ 2 स्विमर्स, 3 cyclists, 4 runners. The team members stand in a line of photograph. How many different arrangements are there of 9 people if none of the cyclists stand next to each other? कोई सा भी साइक्लिस्ट एक साथ खड़ा ना हो. तो इसके लिए मेथड ये है कि आपने 2 स्विमर खड़े कर लिए, पहले स्विमर्स को देख लें और रनर्स को देख लें. इसमें हम स्पेस मेथड करते हैं. देखो ये जो मैंने स्पेसेस बना रहा हूं ब्लैक में ना, ये बीच स्पेस, अगर साइक्लिस्ट यहां पर आए, ये 3 साइक्लिस्ट अगर यहां पर आएंगे
तो बेटा वो कभी भी 3 साइकिल साथ में नहीं होंगे, नन ऑफ द साइकिल्स स्टैंड नेक्स्ट टू ईच अदर, कोई भी साइकिल साथ में नहीं होगा। तो साइक्लिस्ट की परमुटेशन क्या हो जाएगी, उनके पास साइक्लिस्ट के पास बेटा हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, देयर आर 6 ऑप्शन, और साइक्लिस्ट है कितने, 3, तो ये जाएगा 6p3, साइक्लिस्ट की परमुटेशन रहेगी 6p3, ये हो जाएगा 120। और फिर जो साइक्लिस्ट और अदर्स, साइक्लिस्ट की हो जाएगी 6p3 120, अदर्स की हो जाएगी बेटा 5p5, इसको भी 6p3 लिख देता हूं, तो 6p3 is 120 and 5p5 is 5 factorial, but it's 120. सिमिलर उसका तो नहीं है, if 1 2 3 4 5 6, उन्होंने 4 थे, मैंने 3 लिख दिए। अबे यार तो गलती होगा, रिकॉर्डिंग जो है 7p3, इसकी हो जाएगी रनर, सब मिलाकर ये 6 हो गए थे, 6p6, 6p6 is going to be your answer, ये जाएगा 151200, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कभी भी ऐसा हो कि भाई आपके पास कभी वो बोले नन ऑफ द साइक्लिस्ट, नन ऑफ द पीपल स्टैंड नेक्स्ट टू ईच अदर, तो बेटा इस केस में आप स्पेस मेथड कर लेंगे तो ज्यादा, यही मेथड कर लें ज्यादा बेटर है। और ये मेथड क्या है, दिस मेथड इज जस्ट कि आप बेटा ये पहले बाकी लोगों को खड़ा कर दें, इनकी परमुटेशन कर दें, और इनके बीच में ना बाकी लोगों को अरेंज कर लें, यानी साइक्लिस्ट को मैंने देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 पोजिशन में से, इन 7 ऑप्शन में से 3 साइक्लिस्ट अरेंज होंगे, तो इनकी वेज आ जाएगा 120 वेज, और इनको बेटा अडर से मिलाकर आ देंगे, विल गेट द आंसर 151200। ठीक है ना।